you, all the participants and Team Franchise Apply, and a big thanks to Team Franchise Apply for giving such great opportunity to us for sharing their platform and where just we can uh, present ourselves and we can connect many people during this COVID period, and we can guide and we can present our brand and we can guide about all the brand USPs, financials, and other things. So, as it's out, I think we are here for our 10th webinar. So now, today we are going to discuss about multiple things again, and that whole presentations will be divided into multiple things. So first, we will know about our brand and the background of the group. Then we will know about the something bit. I will give an idea about the new education policy, how it is going to impact the preschool market in coming years, and how it is beneficial for the preschool industry, and how just you can initiate a preschool at your area. After that, we will discuss something about the learning concept, what actually we people are following at our place. After that, we will discuss something about the basic concept and methodologies at our end. Then later on, we will discuss about some financial support and services provided by the company. And at the end, we will discuss about the financials and the other things. So in total, we will discuss about the project, and after that the financials, then the costings and costing of the project and all, and then going for the regular revenue and how this we can set up a good center and we can earn from there and we can go for a successful journey. So let's start with the brand first. So our brand name is Peas in Pot, and this is one of preschool chain which is an emerging brand from Noida. And we are working on two different models right now. And the product is initiated by the Brainy Flock Private Limited, which is a private limited company based at Noida, and KSD International Schools, which is one of the emerging K-12 primaries, K-12 schools based at Noida. And they both have combinedly initiated this project called Peas in Pot. So आज का जो प्रेजेंटेशन रहेगा बेसिकली, जैसे मैंने एक बार मैं उसको हिंदी में भी रिपीट कर देता हूँ, उसको हमने मल्टीपल पार्ट में फिर से डिवाइड किया है। पहले हम ब्रांड के बारे में जानेंगे, देन हम ये जानेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस आ रहे हैं जो प्री स्कूल मार्केट को बेसिकली बूस्ट करने वाला है, या प्री स्कूल मार्केट के लिए कितना वो बेनिफिशियल है, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। देन थर्ड पार्ट होगा जहाँ पे हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी लर्निंग कॉन्सेप्ट या मेथडोलॉजीज क्या है एज अ ब्रांड पीस इन पॉट। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कंपनी, अगर आप पीस इन पॉट की फ्रेंचाइजी के लिए जाते हैं तो कंपनी आपको क्या सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि हाँ, प्रोजेक्ट कॉस्ट कंपनी का क्या है, किस तरीके के कमर्शियल मॉडल्स हैं जिसपे कंपनी काम करती है, या कंपनी के बेसिक कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लास्ट में हम ये समझेंगे कि कंपनी आपसे क्या रेगुलर बेसिस पे शेयरिंग लेने वाली है, कंपनी की बच्चों की किट कॉस्ट कितनी है, और कैसे आप एक सक्सेसफुल प्री स्कूल रन कर सकते हैं कमिंग ईयर्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने इनिशिएट किया था कि हम अपने ब्रांड के बारे में जानेंगे, तो ब्रांड का इनिशिएटिव लिया गया था ब्रेनी फ्लॉक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नोएडा बेस्ड, और केएसडी इंटरनेशनल स्कूल, जो कि एक इमर्जिंग K-12 स्कूल है जो अभी प्राइमरी विंग अपना ऑपरेट कर रहा है नोएडा के एरिया में। सो उनका इनिशिएटिव कंबाइंडली था पीज इन पॉट। सो पीज इन पॉट बेसिकली दो डिफरेंट मॉडल्स पे काम कर रहा है। एक मॉडल वो है जहां कंपनी अपने खुद के सेटअप बना रही है, कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल्स, एंड सेकंड है एफओ जिसके जहां पे कंपनी फ्रेंचाइज रूट्स के थ्रू अपने सेंटर्स को अक्रॉस इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में स्प्रेड कर रहे हैं। यानी सेम टाइम पे हम इंडिया और नेपाल दोनों जगह पे फ्रेंचाइजीज ऑफर कर रहे हैं। सो now the next concern which I was telling about the new education policy. So new education policy पे जाने के लिए बेसिकली जैसा कि अभी सभी लोगों ने थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन की होगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, बहुत सारे थॉट्स आए लोगों के माइंड में जो एजुकेशन सेगमेंट में आना चाहते हैं या जो ऑलरेडी एजुकेशन सेगमेंट में कुछ काम कर रहे हैं। सो बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने प्री स्कूल मार्केट के लिए काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं अभी, और वो बेसिक जो अपॉर्चुनिटीज उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बेसिकली पहले था फॉर्मल स्कूल एजुकेशन कंसिडर किया जाता था फर्स्ट स्टैंडर्ड से, तो फर्स्ट टू 12th की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती थी वहां पे। लेकिन उससे पहले के जो सेक्शंस हुआ करते थे, चाहे हम प्ले ग्रुप ले लें या नर्सरी ले लें या जूनियर केजी या सीनियर केजी, जिसको प्री प्राइमरी भी बोलते हैं कभी कुछ लोग,
और जिसको कभी भी फॉर्मल स्कूल एजुकेशन में इससे पहले उस एज ग्रुप को कवर नहीं किया गया था। यानी बेसिकली मैं 2 to 6 ईयर एज ग्रुप की बात करता हूँ या 3 to 6 ईयर एज ग्रुप की। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन को 3 साल और पहले लाया गया है, यानी 3 ईयर्स से कैटर किया जा रहा है, और 3 to 8 नॉट ओनली 6, 3 to 8 का एक स्लॉट बनाया गया जिसको बोला गया फाउंडेशन ईयर्स, जिसमें नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी 3 सेक्शंस एंड फर्स्ट एंड सेकंड, यानी टोटल 5 सेक्शंस को मिलाया गया और उसको बोला गया फाउंडेशन ईयर्स। सो एज अ प्री स्कूल ऑपरेटर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अगर चाहेंगे तो आप अपनी क्लासेस को फाउंडेशन ईयर्स तक स्ट्रेच कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज। यानी जो भी फॉर्मेलिटीज आपको गाइड की जाएंगी, जब वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में आ जाएगा तो उसको कंप्लीट करते हो आप सेकंड स्टैंडर्ड तक भी इसको स्ट्रेच कर सकते हो। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रीमाइसेस में स्पेस है या फर्दर आप इसको प्राइमरी विंग ले जाना चाहते हैं या मिडिल विंग ले जाना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शंस हैं। अब मुद्दा आता है कि 3 से पहले वाले जो सेक्शंस होते हैं, तो 3 से पहले वाले जो सेक्शंस हैं वो 2+ में कुछ लोग उसको टोडलर केयर के नाम से रन करते हैं, कुछ लोग उसको प्री नर्सरी बोलते हैं, कुछ लोग उसको प्ले ग्रुप बोलते हैं। तो डिफरेंट मॉड्स में जहाँ पे डे केयर लोग ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे वो डे केयर में टोडलर केयर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली इसको बाइफरकेट किया गया। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आई हैं और कि हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं टिल एज ऑफ 8th ईयर, 8 साल की एज तक हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज ये भी आई हैं कि अब अगर ये चीजें इंप्लीमेंट 2022 से प्रॉपर्ली हो गई तो हमारे पास एक करिकुलम का भी फ्रेमवर्क आ जाएगा जो कि नेशनली रिकॉग्नाइज होगा, राइट। एनसीईआरटी उस पर काम करेगी उस करिकुलम के फ्रेमवर्क को बनाने पे, फिर वो एससीईआरटीज को भेजा जाएगा, उनके भी अप्रूवल्स आएंगे। सो बेसिकली एक हमें जो फ्रेमवर्क जो आज तक होता ही नहीं था, बेसिकली प्री स्कूल को अभी तक यही मान के चलते थे कि आंगनबाड़ी की कैटेगरी में रखते थे और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको टेक केयर करता था, जिसकी एक बॉडी थी एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो इसको देख रही थी अभी तक। लेकिन फर्स्ट टाइम इसको फॉर्मल स्कूल के एजुकेशन में लेके आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी चीजें सिस्टमेटाइज हो जाएंगी। जो प्री स्कूल बिल्कुल मशरूम्ड हैं, हो सकता है कि कमिंग ईयर्स में जो लोग प्रॉपरली साइट सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, उनके यहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मेजर सारे फॉलो नहीं हो रहे हैं, कुछ लोग नॉर्मल फ्लैट्स में स्टार्ट कर ले रहे हैं 2 BHK में 3 BHK में, जहाँ पे बहुत सफिशिएंट ओपन एरिया नहीं है, स्पेस नहीं है। तो हो सकता है कि उन सारे लोगों के लिए प्रॉपर एनसीपीसीआर की गाइडलाइन तो पहले से थी, जो बहुत सारे स्टेट इंप्लीमेंट कर रहे थे, बहुत सारे नहीं कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि अब ऐसी कुछ गाइडलाइंस आए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हो और वो हमें इंप्लीमेंट करने का चांस मिले। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है आगे के लिए, और प्री स्कूल की नो डाउट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है धीरे धीरे। पेरेंट्स की भी नॉलेज बढ़ रही है कि नहीं, प्री बेसिक जो एजुकेशन है वो प्री प्राइमरी का, वो उनके बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए वो वॉल्यूमेट्रिक थिंग्स आने वाली है एज अ बिजनेस ओनर भी और ऑन द सेम टाइम रिक्वायरमेंट वाइज भी। तो आने वाले समय में ये चीजें देखी जा सकती है कि स्ट्रक्चर्ड प्री स्कूल बनेंगे, अच्छी क्वालिटी के प्री स्कूल बनेंगे। जो बहुत ज्यादा मशरूमिंग्स हो गई हैं वो शायद हो सकता है खत्म हो। बहुत सारी मशरूमिंग्स में लोग बहुत सारी चीजें टेक केयर नहीं करते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी को अवॉइड करते हैं, तो वो सारी चीजें हो सकता है हमारी सॉल्व हो जाए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफी हद तक हमारे लिए बेनिफिशियल है। नाउ कम टू द पीजिंग पॉट अगेन, कि पीजिंग पॉट में हम लोग और क्या कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लर्निंग मेथडोलॉजीज। जब भी आप बेसिकली आज का जो सेशन मैंने रखा है वो इसी पर्पज से रखा है कि ठीक है हम अपने ब्रांड को तो देना चाहते हैं एज अ फ्रेंचाइजी, हम इसको मार्केट में ला रहे हैं और हम फ्रेंचाइजी पार्टनर्स लुक आउट कर रहे हैं। सेम टाइम पे हम स्टेट वाइज स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजीज भी देख रहे हैं जो हमारे साथ हमारे फ्रेंचाइजी नेटवर्क को बढ़ाने में हमें हेल्प कर पाए। तो हम स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजीज भी आज डिस्कस करेंगे, यूनिट फ्रेंचाइजी भी डिस्कस करेंगे जहां कोई एक पर्सन सिंगल फ्रेंचाइजी ले सकता है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये काउंसिल बेटर वे में ये करना है कि आप पीजिंग पॉट के साथ जाएं या आप अगर किसी और ब्रांड के साथ में जाएं, लेकिन आपकी अपनी एक चेकलिस्ट जरूर आपके पास रेडी होनी चाहिए किसी भी ब्रांड को सेलेक्ट करते वक्त। सो उन्हीं पॉइंटर्स को कवर करेंगे आज हम अपने प्रेजेंटेशन में, और सेम टाइम पे ये अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं, जब आप एक प्री स्कूल को ऑप्ट कर रहे हो तो उस प्री स्कूल को ऑप्ट करते वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी और समझनी चाहिए, और जब आप उसको फाइनलाइज कर रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर चेकलिस्ट होना चाहिए एज अ ब्रांड सिलेक्शन, राइट। तो कई बार ये भी आपको कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट है एज अ इन्वेस्टर। तो एज अ लर्निंग मेथोडोलॉजीज हम लोगों ने मोंटेसी पैटर्न ऑफ एजुकेशन को अडॉप्ट किया है।
नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम मॉन्टेसरी बेस्ड प्री स्कूल चेन्स हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको एज ए इन्वेस्टर मॉन्टेसरी को समझना पड़ेगा। मॉन्टेसरी बेसिकली एक लर्निंग मेथोडोलॉजी है जो कि ज्यादातर जो है यूरोप में फॉलो किया जाता है। इंडिया में मेजरली साउथ इंडिया इसको फॉलो करता है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में आपको मॉन्टेसरी बेस्ड प्री स्कूल मिलेंगे और केरला में। उसके बाद हम बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, इन सिटीज और साथ में साथ गुड़गांव और साउथ दिल्ली के कुछ लोकेशंस पे भी इस तरीके के स्कूल्स आप देख सकते हैं जहाँ पे कोर मॉन्टेसरी पे वर्क किया जाता है। तो हमारी एक जो कोशिश है कि नॉर्थ इंडिया में प्लेवे स्कूल्स ऑलरेडी बहुत हैं, ब्रांडेड प्लेवे स्कूल्स भी हैं और जो कि प्लेवे लर्निंग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ऑन द सेम टाइम सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ ऑपरेटेड भी है कि किसी ने खुद भी स्टार्ट किया और वो खुद से भी रन कर रहा है। हमारा थॉट था बच्चों के लर्निंग कॉन्सेप्ट पे काम करने का पहला, तो इस वजह से ही हम लर्निंग मेथोडोलॉजीज में चेंजेस लेके आए हैं। हम मॉन्टेसरी एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। नो डाउट उसकी वजह से हमने प्लेवे को हटाया नहीं है। प्लेवे के कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हमने वहाँ पे ऐड कर रखा हुआ है, जैसे कि वो बुक्स हो सकती हैं या नोटबुक्स हो सकती हैं या अदर लर्निंग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, तो उसको हमने कंबाइंडली साथ में रखा हुआ है। मॉन्टेसरी कॉन्सेप्ट डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा डेवलप किया गया था 1907 में। वो एक इटालियन थी, यूएसए में रहती थी और उन्होंने लगभग अपने पूरे लाइफ के 55 इयर्स अर्ली एज ग्रुप यानी 0 to 6 इयर्स के एज ग्रुप के बच्चों के डेवलपमेंट पे रिसर्च करने में बिताया है। बहुत सारे प्री स्कूल्स भी उन्होंने ऑपरेट किए खुद से, जिसको मॉन्टेसरी स्कूल्स बोला गया। और उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा डेवलप किए गए इक्विपमेंट को ही हम मॉन्टेसरी टूल्स बोलते हैं या मॉन्टेसरी लैब इक्विपमेंट्स बोलते हैं। अगर हम मॉन्टेसरी फिलॉसफी पे काम करते हैं तो हमें एक कोर मॉन्टेसरी के लिए हमें एक डेडिकेटेड मॉन्टेसरी लैब बनाना पड़ता है विच इज मैंडेटरी, जो कि मैंडेटरी है। तो हम स्कूल कैंपस में एक छोटा सा एरिया लेते हैं और वहाँ पे एक डेडिकेटेड मॉन्टेसरी लैब डेवलप करते हैं। उसके लिए लगभग अभी की डेट में हम लोग 55 इक्विपमेंट मॉन्टेसरी के यूज कर रहे हैं। वैसे तो वहाँ पे 500,000 इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि हम क्या क्या यूज करना चाहते हैं और क्या हमारा अपना बजट क्राइटेरिया हम इंडियन मार्केट के लिए रखना चाहते हैं। तो लगभग 55 इक्विपमेंट हम लोग आज के डेट में मॉन्टेसरी में यूज कर रहे हैं, प्लस एडिशनल 45 एक्टिविटी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो लगभग 90+ इक्विपमेंट हमारे लैब में होती हैं टोटल। सो मेजरली आपको जो डिफरेंस मिलने वाला है अदर ब्रांड से वो ये है कि हमारा कोर है हमारा मॉन्टेसरी एजुकेशन, पहला चीज हो गया। सेकेंड, फिर आते हैं हम लोग लर्निंग कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि जी मॉन्टेसरी तो एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ फिलोसफी हो गया, एज अ एजुकेशन मेथोडोलॉजी हो गया, आपका करिकुलम भी उसी पे बेस्ड होगा। लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट, आपके हमारी यूएसपी में या हमारे कॉन्सेप्ट में और क्या चीजें हैं? तो इस पर्टिकुलर पेज जो आपके सामने विजिबल होगा वहां से आपको पता चलेगा कि टोटल हमारा कैंपस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक है ऊपर इंटीग्रेटेड डिजिटल लर्निंग अप्रोच और दूसरा है ट्रांजिशनल लर्निंग एरिना फॉर ब्लेंडेड एजुकेशन। सो पहले मैं डिस्कस करूंगा ट्रांजिशनल लर्निंग एरिना फॉर ब्लेंडेड एजुकेशन कि मॉन्टेसरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके साथ साथ और क्या चीजें हमारे कैंपस में बनेंगी। तो उसमें सेकंड है क्रिएटिव एरिना। सो मॉन्टेसरी के साथ साथ एक क्रिएटिव कॉर्नर भी हम लोग डेवलप करेंगे, क्रिएटिव एरिना, जहां हम कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारा कितना क्रिएटिव हो सकता है या अपनी स्किल्स को कितना यूटिलाइज कर सकता है या स्किल को कितना ग्रो कर सकता है। सो वहां पे हम बेसिकली वुडन एजल बोर्ड्स रखते हैं। एक चीज और स्पेसिफाई कर देना चाहता हूं मैं कि मॉन्टेसरी लैब, सेल्फ लर्निंग लैब और क्रिएटिव एरिना, इन सब में जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब वुडन मेड है। किसी भी तरीके का लो क्वालिटी प्लास्टिक इक्विपमेंट हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं जो हमारे पार्ट ऑफ लैब है, जहां पे हम बच्चों को उस तरीके के हार्म प्लास्टिक यूजेस से बचा भी रहे हैं। तो एक चीज ये भी केयर करने की जरूरत है जब आप अपने किसी भी ब्रांड का सिलेक्शन कर रहे हैं कि उनकी फर्नीचर क्वालिटी क्या है, उनका वो किस टाइप के प्लास्टिक के बने हुए हैं, क्या सारे इक्विपमेंट प्लास्टिक के भी हैं के ही हैं या वुडन इक्विपमेंट भी वो लोग यूज कर रहे हैं, तो दैट यू नीड टू चेक इट आउट। सो क्रिएटिव एरिना में भी हमारे पास ऑप्शन था कि हम प्लास्टिक के एजल बोर्ड्स लाते, बच्चे उस पर खड़े होते, उस पर ड्राइंग बनाते या अदर चीजें करते। नहीं, हमने प्रेफर किया वुडन इक्विपमेंट्स। सो एजल बोर्ड्स भी हमारा वुडन मेड है जो कि पार्ट ऑफ क्रिएटिव एरिना है। लो हाइट है इसलिए बच्चों के हाइट के अकॉर्डिंग उसे डेवलप किया गया है और वहां पे बच्चे स्टैंडिंग मोड में ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं या कलरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है जिम रूम। एक छोटा कॉर्नर हम लोग एज अ जिम एरिना डेवलप करते हैं जहां पे हमने दोनों टाइप के इक्विपमेंट्स दिए हैं। अर्ली एज को भी टारगेट करके, अर्ली एज मतलब 2 साल से 4 साल, और एल्डर एज मतलब 4 to 6 हो सकता है या अभी एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 to 8 भी हो सकता है। सो जिम एरिना में सॉफ्ट जिम इक्विपमेंट फॉर अर्ली एज और मैनुअल जिम इक्विपमेंट फॉर द सीनियर एज, तो दोनों तरीके के जिम इक्विपमेंट दिए गए हैं। टोटल लगभग 5 to 6 इक्विपमेंट हमारे जिम में हैं
राइट। वो सारे जिम इक्विपमेंट्स हम एक कॉर्नर पे डेवलप कर देते हैं जहां बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज को डेवलप कराते हैं। जो शॉर्ट जिम इक्विपमेंट है वो फोम बेस्ड होते हैं, इसलिए बच्चा किसी भी तरीके से वहां पे गिरता है तो उसको चोट नहीं आती है, और यंगर एज को हम टारगेट करके हमने वो रखा हुआ है। तो आपको आपकी चेकलिस्ट में ये भी होना चाहिए कि जो भी पर्सन आपको जिम ऑफर कर रहा है वहां आपको ये चेक करना है कि भाई आपके पास सॉफ्ट जिम भी है या केवल मैनुअल जिम आप दे रहे हो, क्योंकि मैनुअल जिम बड़े बच्चे तो कर सकते हैं लेकिन छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो एक चेकलिस्ट आपके लिए मैंने यहाँ पे तैयार कर दी। देन कम टू द लाइब्रेरी। 90% प्री स्कूल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो जो ये समझते हैं कि प्री स्कूल में लाइब्रेरी का कोई यूज नहीं है। हमने लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करी है, हमने लगभग 100 बुक का कलेक्शन बनाया है वर्ड बुक फेयर से, और हमारी पूरी कोशिश वहां पे ये है कि जो एज जिसको हम कवर करने जा रहे हैं 2 to 4 एंड देन 4 to 8, सो उन दोनों एज ग्रुप में डिफरेंसेस ये है कि 2 to 4 वाला चीजों को रीड नहीं कर सकता है, विजुअलाइज कर सकता है, फील कर सकता है या समझ सकता है। 4 to 6 वाला ऐसा आता है कि थोड़ा थोड़ा उसको रीड कर सकता है, राइमिंग कर सकता है या अदर सारी चीजें यूटिलाइज कर सकता है या मोरल स्टोरीज पढ़ सकता है। सो हमने उस तरीके से बुक का कलेक्शन किया हुआ है। तो 2 to 4 का जो एज ग्रुप का बुक है उसमें हमने विजुअल बुक्स को ज्यादा रखा है, यानी उसमें कंटेंट लेस बुक्स हैं, कंटेंट नहीं है उन बुक्स में, और बच्चे उसको स्पेसिफाई कर पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं। जैसे मैंने बोला कि जंगल थीम पे कोई हमारी बुक बेस्ड है, तो हमने उसको 3D बुक्स दी हुई है जहां वो फील करेगा कहाँ एक जंगल है और वहां पे एक लॉयन है या टाइगर है या अदर एनिमल्स हैं। सो वो 3D में उसको फील कर पाता है, लेकिन उसको कंटेंट रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, उसमें कंटेंट है भी नहीं। सेकेंड जो बुक दी है 4 to 6 ईयर एज ग्रुप को, वो रीडिंग बुक्स दी है, उसको बच्चे घर पे भी ले जा सकते हैं या यहाँ पे टीचर्स के साथ एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन उसका किया जा सकता है, या पेरेंट्स उसको इशू करके घर ले जा सकते हैं। तो हमने लाइब्रेरी का भी एक सेगमेंट दिया हुआ है जिसमें लगभग 100 बुक्स हैं, और अप्रोक्सीमेट उसके साथ में हमारी बुक रैक यानी जाती है जिससे कि आप उसमें इंस्टॉल कर पाते हैं। फोर्थ वन इज दैट बच्चों की लर्निंग को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने स्टोरी टेलिंग एरिना क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि बच्चे स्टोरीज के थ्रू ज्यादा चीजों को कोरिलेट कर पाते हैं। तो वो जो चीजें वो विजुअल देखते हैं, जैसे हम स्टोरीज बता रहे हैं तो वो सुन रहे हैं, और सामने टीचर जब उस स्टोरी को प्रेजेंट कर रही है, चाहे वो किसी भी मोड से कर सकते हैं। हमारे केस में हम उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसको कि पपेट थिएटर्स यानी स्टोरी टेलिंग थिएटर, या हम हैंड पपेट एंड फिंगर पपेट्स बोलते हैं। हैंड पपेट, फिंगर पपेट्स एंड पपेट थिएटर, ये तीन का कॉम्बिनेशन होता है। टीचर्स स्टोरीज क्रिएट करती हैं और उसके थ्रू बच्चों को कराती हैं। सामने बच्चे बैठते हैं, पपेट थिएटर की बैक साइड में टीचर्स होती हैं, कर्टेन्स ओपन होता है और उसको स्टोरीज करते हैं। सेम टाइम पे अगर हम वही चीज कोरिलेट करते हैं कि हम बच्चे को किसी चीज की फिजिकल विजिट देते हैं, जैसे हम उसको टेंपल ले गए या गुरुद्वारा ले गए, या हम उसको हम उसको पुलिस स्टेशन ले गए, हम उसको मॉल में ले गए, या हम इसको एटीएम मशीन पे ले गए, तो वो उन चीजों को प्रैक्टिकली कोरिलेट कर पाता है उन सारी स्टोरीज से जो स्टोरीज उसको एक्चुअली स्टोरी टेलिंग के दौरान बताई गई थी। तो वो उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं ये किस तरीके से हमारे कैंपस में हमारी चीजें कराई जाती रही हैं स्टोरीज के थ्रू। इसके बाद फिर हमारा है प्ले एंड रिक्रिएशन एरिना। प्ले एंड रिक्रिएशन एरिना बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग करते हैं। हमें जैसा भी साइट में स्पेस मिलता है, जैसा भी साइट में स्पेस मिलने का मतलब है कि लगभग 90% केसेस में इंडिया में प्री स्कूल ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में चलते हैं, यानी लोग रेंट पे साइट लेते हैं और उस पर स्टार्ट करते हैं। तो कई बार हम सिविल ब्रेकेज नहीं कर सकते हैं या सिविल हम अपने अकॉर्डिंग नहीं डेवलप कर सकते हैं। तो उस केस में ऐसा है कि जैसा भी हमें स्पेस मिलता है, गार्डन मिला, कहीं हमें ओपन स्पेस ज्यादा मिलता है, कहीं कम मिलता है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें सेटअप करते हैं। उसमें से एक है ट्री हाउस, दूसरा है सैंडपिट, तीसरा है रोल प्ले एरिया। सो ट्री हाउस का जो प्रोविजन है, ट्री हाउस आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अगर आपके पास गार्डन है तभी हम लोग ट्री हाउस आपको सजेस्ट करते हैं। तो ट्री हाउस में बेसिकली 5 एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, जिसमें एक स्लाइडर लगा होता है, एक स्टेयर्स लगी होती हैं, रोप क्लाइंबिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग होता है, और सैंडपिट होता है, और एक डॉल हाउस होता है ऊपर, सबसे ऊपर हट पे। तो जनरली छोटे मोटे कुछ ट्री हाउस की अगर मैं फीलिंग देना चाहूँ तो वो आप शायद हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं इंडिया में, कि वहां पे होटल्स या इस तरीके के स्टे के लिए लोगों ने ट्री हाउसेस बना रखे हुए हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट शायद वहां से लिया गया है या कुछ वेस्टर्न कंट्रीज से लिया गया है। सो ट्री हाउस में हम लोग 5 एक्टिविटीज दे रहे हैं, जिससे स्टेयर से बच्चा ऊपर जाता है, स्लाइड से नीचे आता है, देन रोप क्लाइंबिंग है, यानी रोप के सहारे वो क्लाइंबिंग करता है जिससे कि उसकी मसल्स पे काफी काम हो जाता है। रॉक क्लाइंबिंग से कंसंट्रेशन और मसल्स पे काम करने के लिए रॉक क्लाइंबिंग दी गई है। सैंडपिट दिया गया है कि बच्चे के फिंगर्स और जॉइंट्स पे काम करने के लिए सैंडपिट उसमें दिया जाता है, और बेबी हट दिया जाता है कि बच्चे हाइड एंड सीक के अदर डॉल हाउस एक्टिविटीज वहां पे कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास उतना एडिशनल अगर बजट इन्वेस्टर्स के पास नहीं है, या उनके पास उस तरीके का गार्डन स्पेस नहीं है, क्योंकि गार्डन स्पेस होगा तभी आपको ट्री हाउस का फील आ पाएगा। तो उस केस में फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि जो हमारे पैकेज में प्ले इक्विपमेंट दिए गए हैं इंडोर एंड आउटडोर, आप उस पर वर्क कर लीजिए, या आपको हम सजेस्ट कर देते हैं कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आप प्लास्टिक या
मेटालिक आउटडोर प्ले स्टेशन परचेज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हम सजेशन आपको देते हैं आपकी साइट को ऑब्जर्व करने के बाद। सो वो भी चीजें हैं जो हम वहाँ पे एडिशनली ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रोल प्ले की एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे हैं, जैसे वो किचन से रिलेटेड एक्टिविटीज हो सकती हैं, जो हम इसके लिए इक्विपमेंट हम भेजते हैं, या बच्चों को ट्रैफिक सेंस देना है तो उसके लिए ट्रैफिक साइनेज, ट्रैफिक लाइट्स, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट भेजते हैं, तो उनकी एक ट्रैफिक से रिलेटेड एक्टिविटीज हो जाती है उनको ट्रैफिक सेंस देने के लिए। तो ऐसे ऐसे लगभग 45-50 के करीब इक्विपमेंट्स हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर रोल प्ले एक्टिविटीज। तो ये बेसिकली वो चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी जो फिजिकली आपके कैंपस में प्रेजेंट होंगी, चाहे वो छोटे साइज में हो, बड़े साइज में हो, बिकॉज वो सारा कुछ डिपेंड करेगा स्पेस के ऊपर कि हम उसको एक एक रूम में बना रहे हैं या एक एक कॉर्नर में बना रहे हैं। पहला। दूसरा है कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड डिजिटल लर्निंग अप्रोच। इंटीग्रेटेड डिजिटल लर्निंग ये है कि बेसिकली कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने कोविड के दौरान यूज करी हैं, बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट उसकी महसूस हुई है कि कई बार जो बच्चों की क्लासेस थी वो घर से ऑपरेट हो रही थी। सो पहला चीज है वो कम्युनिकेशन। कोविड के दौरान ये देखा गया है कि कम्युनिकेशन मेंटेन करना टीचर्स का और पेरेंट्स का बहुत जरूरी था। लोग पेरेंट्स स्कूल तक नहीं आ रहे थे, तो वो बहुत सारे लोग जो डायरी यूज करते थे वो उनके लिए यूजफुल नहीं थी। तो उसका सोल्यूशंस है मोबाइल एप्लीकेशंस। डेली बेसिस के जो होमवर्क हैं, चाहे वो पीडीएफ फाइल्स हों या जेपीईजी हों, या डेली के फोटोग्राफ्स हैं या वीडियोस हैं, या पेरेंट्स को कुछ भी टीचर्स को सेंड करना है, वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज हमने कवर करना शुरू किया अपने मोबाइल एप्लीकेशन से। सो टीचर्स का टाइम काफी बच रहा है, और जो मैनुअल डायरी लिखते थे और उनका 10 से 15 मिनट डायरी मेंटेन करने में जाता था सारी बच्चों का, वो उनका पूरा टाइम बच रहा है। एक सेम टाइम पे सीमलेस उनका जो है बेसिकली अटैचमेंट है पेरेंट्स के साथ में, या पेरेंट्स की कुछ क्वेरीज हैं तो डायरेक्टली वो अपने बच्चे के पर्टिकुलर टीचर से वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मोबाइल ऐप से आए हैं। इसके अलावा डिजिटल क्लासरूम वाई हम सेइंग एग्जैक्टली कि इसमें 2 मोड हमने कर दिया है कि अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, जैसे कोविड के दौरान नहीं चली हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हम उसके जो कंटेंट है वो डिजिटल कंटेंट हम अपनी टीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हमारी बुक का सेम वही कंटेंट है जो हमने अपनी बुक्स में मैनुअल प्रिंट किया हुआ है। तो उनको बेनिफिट ये है कि सेम कंटेंट वो क्लासरूम में यूज कर रही हैं, चाहे वो एलईडी टीवी हो आपके पास तो उस पर यूज करेंगे, या प्रोजेक्टर है तो उस पर यूज करेंगे। हमारे केस में आपको स्मार्ट बोर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड आपके लिए कई बार एक्सपेंसिव हो जाता है या उसको मेंटेन करना है। तो प्रोजेक्टर हम लोग इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि जो लर्निंग कंटेंट है वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हमें अदर चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्मार्ट बोर्ड या अदर चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्मार्ट बोर्ड की मेजरली रिक्वायरमेंट फॉर्मल स्कूल एजुकेशन में है, जहां आप बड़ी एडु टेक्नोलॉजी कंपनियों से टाई अप कर सकते हैं जो आईसीटी प्रोवाइड करती हैं, और अपने हर एक क्लास में एक एक बोर्ड दे सकते हैं। बट यहाँ पे हमें एक जो बोर्ड चाहिए, यानी चाहे वो प्रोजेक्टर या एलईडी टीवी चाहिए, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे चाहिए जहाँ पे हम बच्चों को रोटेशन मोड में ला सकें और उनकी एक्टिविटीज और चीजों को या उनके वीडियोज को प्ले कर सकें। तो दैट इज द वन थिंग विच वी आर असिस्टिंग टू आवर टीचर्स। नेक्स्ट वन इज अ स्मार्ट बुक एंड स्मार्ट चार्ट, जो कि हमने कोविड के दौरान यूज करी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थी हमें बच्चों को भेजना। सो इसमें स्मार्ट बुक के एक बॉक्स में हमारे 9 बुक्स हैं और इंटरेक्टिव पेन है। इंटरेक्टिव पेन जिसको हम लोग रीडिंग पेन्स बोलते हैं, जो पेन बोलती है। सो बोलने का पर्पज ये है कि बच्चा उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को, उन लेटर्स को सुनता है, राइट। सुनने के बाद बेसिकली उसका क्या डेवलप होता है, उसका फोनिक्स पार्ट डेवलप होता है, किस पर्टिकुलर लेटर को क्या बोलना है, किस पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस को क्या बोलना है, वो उसका पार्ट स्ट्रांग होता है। वो उन चीजों को सुनता है तो उसकी लर्निंग हैबिट्स भी डेवलप हो जाती हैं, लिसनिंग हैबिट्स भी डेवलप हो जाती हैं। चूंकि वो वीडियो वॉचिंग नहीं कर रहा है तो उसके आई पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। यानी जो छोटे बच्चों में अभी आजकल देखा जा रहा है कि यूट्यूब वीडियोस पे बहुत सारे बच्चे इस कोविड के टाइम पे इंगेज हुए हैं, तो उनकी आई ड्राइनेस इश्यूज बढ़ी हैं, यानी बहुत सारे छोटे बच्चों को भी स्पेक्ट्स लगने स्टार्ट हुए हैं। तो वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं हमारी स्मार्ट बुक और स्मार्ट चार्ट। तो स्मार्ट बुक का सेट बच्चों के लिए है, स्मार्ट चार्ट का सेगमेंट जो है वो हम लोग जो टीचर्स को दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग प्रैक्टिस के लिए एक एक सेट दे रहे हैं जो कि टीचर्स स्कूल में यूज करेंगी बच्चों के साथ में। और स्मार्ट चार्ट जो कि वो बड़े साइज का होता है, तो टीचर्स उसको फ्रेम करके चाहे यूज कर सकते हैं या उसको लूज एज पर क्लास वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने और करी हैं अभी इस कोविड के टाइम पे, क्यूआर बेस्ड बुक्स। बच्चों को ये हमने ऑब्जर्व किया कि बच्चों ने वीडियो वॉचिंग बहुत करी है अभी। तो वीडियो वॉचिंग में कौन सा उन्होंने कंटेंट किया है, क्या वो नॉर्मल यूट्यूब पे थे या यूट्यूब किड्स पे थे, तो कंटेंट कैसा था उनका। उन सब सारे सॉल्यूशंस, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए हमने अपनी रीडिंग बुक्स पे, यानी प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, सारी बुक्स पे जो रीडिंग बुक्स थी उन पे हमने क्यूआर कोड्स लगाए हैं।
जो कि जनरली जैसे हम पेटीएम या मूवी क्यूकन सब में देखते हैं। तो क्यूआर कोड से आप अपने फोन से बुक को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद उस पर्टिकुलर बुक के कंटेंट को आप अपने फोन में भी प्ले कर सकते हैं। तो वो एक ऑप्शन हमने दिया है कि जब भी आपको ऐसी जरूरत महसूस होती है कि बच्चों को वीडियो कराना है घर पे, तो आप बुक के ही कंटेंट को अपने फोन से करा सकते हैं। सो दीज ऑल आर द प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ कैंपस को और स्ट्रांगली मैनेज करने के लिए हमने ERP सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, ERP सॉफ्टवेयर भी, जिसका पर्पस है कि आप अपने कैंपस को विदाउट रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। इट मींस रजिस्टर आपको किस लिए चाहिए? आपके विजिटर की एंट्री के लिए चाहिए, आपके अटेंडेंस के लिए चाहिए स्टाफ के, आपके बच्चों के अटेंडेंस के लिए चाहिए, आपके स्टॉक मैनेजमेंट के लिए चाहिए, आपके फी कलेक्शन के लिए फी रिसीट बुक चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हम मैनुअल करते थे वो सारे ERP सॉल्यूशंस में हैं और आप उसको वन वे कर सकते हैं। आपके लॉगिन एंड पासवर्ड्स हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको आप कहीं पे भी रह के देख सकते हैं कि आपकी टीम क्या कर रही है स्कूल पे, या आपकी ब्रांच कोऑर्डिनेटर ने किस तरीके से सेंटर्स को मैनेज किया है, क्या उनका फी कलेक्शन रहा है, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं नहीं है, वो सारी चीजें आप वन प्लेस मैनेज कर सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज हमने इंटीग्रेटेड डिजिटल लर्निंग अप्रोच में आपको दी हुई है। सो इसके बाद नाउ वी विल मूव फॉर द सपोर्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट वन, आई थिंक ये नेक्स्ट शीट आपको विजिबल होगी। नेक्स्ट स्लाइड, आवर फ्रेंचाइज सपोर्ट सिस्टम। टोटल सपोर्ट सिस्टम को हमने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। First one is the startup support, second one is the recruitment and training support, third one is the marketing and advertisement support, and fourth is ongoing regular support. So basically अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो सपोर्ट में सबसे पहला पार्ट होता है कि जब आप फ्रेंचाइजी फाइनल करते हो, नो डाउट कि आपको इसको अपनी चेकलिस्ट भी बनानी चाहिए कि कौन सी कंपनी की क्या कमिटेड सपोर्ट एंड सर्विसेज है और क्या आपको एक्चुअली मिल रहा है, मिलने वाला है या मिलना शुरू हुआ है, राइट। तो वो भी आपको चेक करना चाहिए। तो स्टार्टअप सपोर्ट में बेसिकली हमने ये फाइनलाइज किया हुआ है कि स्टार्टअप सपोर्ट इनिशियल सपोर्ट होगा जब हम उस पर्टिकुलर सेंटर को रेडी करेंगे। तो सेंटर को रेडी करने के लिए हमें कई बार सपोर्ट देना होता है साइट की सर्चिंग में। हमने एक लोकेशन फाइनलाइज कर ली, फॉर एन एग्जाम्पल कि हमने पटियाला फाइनलाइज कर लिया। अब हमारी बुकिंग, आपने हमें एक इनिशियल पेमेंट कर लिया, हमने LOI पेपर साइन कर लिया पटियाला के नाम पे, लेकिन अब हमारे पास पटियाला में कोई साइट नहीं है। आप चाहते हो कि मैं आपको साइट सर्चिंग में भी हेल्प करूं, तो पहली हेल्प हमारी तरफ से जो आपको जाती है वो होती है साइट सर्चिंग में। तो फर्स्ट जॉब ऑफ द कंपनी इज सर्चिंग ए गुड साइट फॉर यू एट द डिजायर्ड लोकेशन। तो पहला तो वो ऑप्शन हो गया कि कंपनी आपको हेल्प करती है साइट सर्चिंग में, यानी कंपनी और आपकी टीम कंबाइंडली उसके लिए वर्क करती है। दूसरा, जैसे ही हमारे पास साइट आ गई, सेम टाइम पे हम ये एनालिसिस करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया का एक सर्वे इन द सेंस हमारा जो कंपटीटर वहां पे है, इट कैन बी एनी ब्रांड। मैं टॉप 10 ब्रांड आपको बोलूंगा तो टॉप 10 ब्रांड का हमने एक सर्वे कर लिया कि उस एरिया में उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG एंड UKG में, उस एरिया में वो स्टाफ किस तरीके का हायरिंग कर रहे हैं, उनके स्टाफ की क्वालिफिकेशंस क्या है, उनके स्टाफ की सैलरी स्ट्रक्चर उस एरिया में क्या कर रहा है, मेट्स को वो क्या सैलरी दे रहे हैं, या उनका गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड को क्या सैलरी वो लोग पे करते हैं, ब्रांच कोऑर्डिनेटर की क्या सैलरीज हैं, और किस तरीके का उनका क्वालिटी सेंटर है। उसके लिए एक ब्रीफ सर्वे हम लोग कराते हैं और उसका पर्पस होता है नो योर कंपटीटर एंड योर एरिया, राइट। सो जिसके बिहाफ पे हम अपनी फीस फाइनलाइज कर सकते हैं, हम अपने स्टाफ की सैलरी फाइनलाइज कर सकते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड को और स्ट्रांग बना सकते हैं उस मार्केट में प्रेजेंस करने के लिए बिफोर लॉन्चिंग। फिर नेक्स्ट आता है एम्बियंस की प्लानिंग। जैसे हमारी साइट सर्चिंग डन हो जाती है तो एम्बियंस की प्लानिंग, एम्बियंस में इंटीरियर वर्क और अदर सप्लीमेंट्री वर्क। तो इंटीरियर वर्क में जैसे कि उसकी पेंटिंग में कलर कोड्स क्या होंगे, या उसकी सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या चीजें करनी है। सेफ्टी में जैसे कि CCTV हो गया, या फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, डोर स्टॉपर हो गया, डोर क्लोजर हो गया, यानी डोर सेफ्टी जिसको हम लोग बोलते हैं। किचन की सेफ्टी में क्या क्या हमें करना है, फ्लोरिंग में कुछ करना है या वहां नहीं करना है, या हमारा फ्लोरिंग करना है तो क्या कलर कोड है, वो सारी की सारी चीजें बेसिकली इंटीरियर का पार्ट हो जाती हैं। तो वो भी हमें टेक केयर करने की रिक्वायरमेंट्स हैं। देन उसके बाद जैसे वो पार्ट हमारा चलता रहता है, सेम टाइम पे कि हम यहाँ से जो मटेरियल आपको भेजते हैं, यानी जो सेटअप मटेरियल हमारी तरफ से कंपनी डेडिकेटली प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो बच्चों का फर्नीचर हो, प्ले इक्विपमेंट्स हो, या मॉन्टेसी लैब हो, यानी जितना चीजें पीछे हमने डिस्कस करी हैं, सो वो सारी चीजें जब कंपनी भेजती है तो उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, तो इंस्टॉलेशन कंपनी की टीम करेगी, कब इंस्टॉलेशन होगा, उसका क्या ड्यूरेशन होगा, वो सारी की सारी चीजें करना एम्बियंस प्लानिंग में आता है। तो एम्बियंस प्लानिंग भी इज पार्ट ऑफ कंपनी विद द सपोर्ट ऑफ योर टीम। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या आप ही के वेंडर सारा करेंगे, पेंटिंग करेंगे, CCTV करेंगे, या आप ही के वेंडर जो है फायर एक्सटिंग्विशर लगाएंगे। नहीं, आप अपने लोकल वेंडर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो एफिशिएंट होने चाहिए, हम उनको गाइड करते हैं और वो सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। तो देयर इज नो हिडन कॉस्ट,
कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं है, आप अपना वेंडर खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड देयर ट्रेनिंग सेशंस। तो स्टाफ रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 डिफरेंट वर्टिकल में स्टाफ हमारे होंगे। पहला होंगे हमारा ब्रांच कोऑर्डिनेटर, या जिसको आप ब्रांच मैनेजर भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, काउंसलर भी बोल सकते हैं, राइट। सो ब्रांच कोऑर्डिनेटर का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे सेंटर को मैनेज करना 360 डिग्री अप्रोच के साथ। It means exactly either it is related to admissions or the staff management or the coordination with company, coordination with owners, coordination related to the branding and marketing, coordination with the internal staff. So वो सारी की सारी चीजें करना उनकी अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट होता है। सो हमें एक अच्छी कोऑर्डिनेटर चाहिए, पहला ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा टीचर्स। टीचर्स जनरली हम लोग जो सजेस्ट करते हैं वो 10:1 के रेशियो में, यानी 10 बच्चों पे एक एडल्ट का रेशियो हम लोग फॉलो करते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्लास में कितने बच्चे होंगे, ये डिपेंड करता है कि क्लास का रूम साइज क्या है प्री स्कूल के केस में, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक कंस्ट्रक्टेड साइट मिलती है, तो कई बार हम रूम साइज देख के आपको बता पाते हैं कि वहां कितने बच्चे आपको एकोमोडेट करने चाहिए, क्योंकि इस एज ग्रुप के लिए थोड़ा सा बच्चों को फ्री स्पेस चाहिए होता है, राइट। सो 10:1 का एडल्ट रेशियो रहेगा टीचर्स के केस में। जनरली जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वहां पे प्री प्राइमरी के लिए जो एप्रोप्रिएशन फाउंडेशन ईयर्स में दिया गया है वो 20:1 है, यानी 20 पे आप एक एडल्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, राइट, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बट जनरली हम लोगों ने ये जो ऑब्जर्व किया हुआ है 10, 12, 15 तक आप हाईएस्ट स्ट्रेच कर सकते हो, क्योंकि वहां पे पर्सनल अटेंशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को। तो स्टार्टिंग में हम लोग 2 टीचर हायर करेंगे और उसके बाद एज पर वॉल्यूम एंड क्लासेस डेवलपमेंट हम उस नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे। थर्ड आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होती है हमारी मेट्स, दीदीज या आयाज, हम कुछ भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट होती है टीचर्स को सपोर्ट करना, बच्चे को सपोर्ट करना और स्कूल को मैनेज करने में हेल्प करना। सो वो सारी चीजें कराने के लिए हमें मेट्स की जरूरत होती है। सो मेट्स को अपॉइंट करना लोकली और उनकी ट्रेनिंग, नो डाउट कि वो हमारा पार्ट होता है एज अ कंपनी उनकी ट्रेनिंग को कंडक्ट करना। देन फोर्थ स्टाफ इज द सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड ही आपका एक ऐसा स्टाफ होगा जो कि मेल पर्सन होगा, गेट पे होगा, इन एंड आउट चीजें देखेगा एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मैनेज करेगा। जितने विजिटर्स आएंगे उनकी वो प्रॉपर एंट्री कराएगा। अभी के टाइम पे कोविड की चीजें फॉलो हो रही है नहीं, वो गेट से ही उसको इंश्योर करेगा कि कोविड की सारी गाइडलाइंस वहाँ पे कैंपस में फॉलो हो रही है, सब लोग मास्क में आ रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सबका टेम्परेचर वो लेगा। तो ये सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं दैट इज डन बाय द गार्ड ओनली। तो वो सारे वर्क वो करने वाला है वहाँ पे। इन सारे लोगों की 4 डिफरेंट राउंड ऑफ ट्रेनिंग्स, यानी बेसिकली कि इन सारे लोगों के अलग अलग टीचर्स की एकेडमिक ट्रेनिंग हो गई एंड ब्रांच कोऑर्डिनेटर्स की सेंटर मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कोऑर्डिनेशंस, मेलिंग, इन सारी से चीजें रिलेटेड ट्रेनिंग्स हो गई। ओनर्स की कंबाइंड ट्रेनिंग हो गई ब्रांच कोऑर्डिनेटर के साथ में, प्लस मेट्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग। ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स हम इंश्योर करते हैं आपके कैंपस को कंडक्ट करने का। तो ट्रेनिंग जो की जाती है वो 2 पार्ट में रहेगी। पहली ट्रेनिंग होगी जो सेटअप बनाने से रिलेटेड होगी, दूसरी ट्रेनिंग होगी जो स्कूल के स्टाफ से रिलेटेड होगी। सो ये सारी ट्रेनिंग आपके अपने कैंपस पे हम लोग कंडक्ट करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है लास्ट पार्ट, दैट इज द थर्ड वन पार्ट इज द मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट सपोर्ट्स। मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट सपोर्ट्स को हम लोगों ने 2 से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है कि थ्रू आउट द ईयर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट्स वो कंपनी देखती है डिजिटल प्लेटफॉर्म से, एज सोशल मीडिया एंड द गूगल एडवर्ड्स। सो कंपनी थ्रू आउट द ईयर सारे के सारे सेंटर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने वाली है एडवर्टीजमेंट्स के लिए। दैट इज द वन कमिटमेंट फ्रॉम आवर साइड। सेकेंड है कि जब हम स्कूल अभी स्टार्ट करेंगे, फेज 1 में जब आप फ्रेंचाइजी लेंगे, तब हम आपको ये श्योर करते हैं कि आपको कोई भी प्रमोशन रिलेटेड मटेरियल खुद से लोकली प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम सारे के सारे प्रिंटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो स्कूल के बोर्ड का फ्लैग्स हो, चाहे वो अम्ब्रेलाज हो या कैनोपीज हो, चाहे वो फ्लायर्स हो जिसको हम न्यूज़पेपर इंसर्ट भी बोलते हैं, चाहे वो नियर बाई पोल्स में लगाने के लिए पोल बोर्ड हो या फ्लैक्सेस हो। वो सारे के सारी चीजें इनिशियली हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि आप अपने सेंटर की इनिशियल ब्रांडिंग को मैनेज कर पाए। इसके बाद फिर आता है नेशनल लेवल या रीजनल ब्रांडिंग्स। तो नेशनल लेवल एंड रीजनल ब्रांडिंग के लिए आप हमेशा उसके पार्ट रहते हैं, चाहे वो हम उसको मैगजीन्स के थ्रू कर रहे हैं या हम अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्रेंचाइज इंडिया, फ्रेंचाइज अप्लाई, इन सब प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, या हम आपके स्टेट में कोई भी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो कंबाइंडली यू विल बी पार्ट ऑफ दैट वन, आप उसका पार्ट रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें एक्टिविटीज जो है वो कंपनी मैनेज करती है अपनी ब्रांडिंग एक्टिविटीज के लिए, अपने सेंटर्स के एडमिशंस को एनहेंस करने के लिए। इसके साथ साथ आपको वेबसाइट सपोर्ट हमारी तरफ से दिया जाता है, तो आपको कोई भी सेपरेट वेबसाइट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके सेंटर्स की लिस्टिंग हमारे वेबसाइट पे होगी, गूगल मैप लिंक, फेसबुक लिंक और आपके सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर विद प्रोफाइल ऑफ योर सेंटर ओनर।
सो वो सारी चीजें हमारी वेबसाइट पे होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको एक टोल फ्री नंबर हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है जिसकी कॉलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी हमारे अपने पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स उस पर हमें इंस्टेंटली अपनी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं, या उनके कुछ फीडबैक्स हैं या क्वेरीज हैं तो वो हमें भी भेज सकते हैं, जिससे कि हम अपनी स्कूल टीम को सपोर्ट कर पाए, चाहे वो एडमिशन लेने के लिए हो या फीडबैक या अदर किसी रिलेटेड क्वेरीज से हो। सो वो सारी की सारी चीजें हम सॉल्व करते हैं अपने टोल फ्री नंबर से। तो ये पार्ट हमारी मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी का है। इसके अलावा डिटेल स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड की जाती है कि थ्रू आउट द ईयर आपको कितना मार्केटिंग बजट रखना है और किस तरीके की एक्टिविटीज हमें वहां पे एज पर लोकल कम्युनिटी या लोकल एरिया हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, दैट्स ऑनगोइंग एंड रेगुलर सपोर्ट। ऑनगोइंग एंड रेगुलर सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो डेडिकेटेड एडमिशन टीम हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके बिहाफ पे आपके किसी भी इंक्वायरीज को काउंसलिंग करेंगे। इट्स ऑनलाइन काउंसलिंग हमने इनिशिएट किया है कोविड के टाइम से ही। इसके अलावा पेरेंट्स के अगर कुछ इश्यूज हैं तो हम उसको सेंट्रली हैंडल करना चाहते हैं, सेंट्रली हैंडल हम लोग उसको करेंगे। इसके अलावा फिर आपको डेडिकेटेड सीआरएम पोर्टल्स और ऐप दिए गए हैं जिससे अपने सेंटर को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। ऑनगोइंग स्टाफ ट्रेनिंग, अभी तक मैंने आपको इनिशियल ट्रेनिंग की बात की थी। ऑनगोइंग स्टाफ ट्रेनिंग हमारा पार्ट है वीकली फॉलो ट्रेनिंग, यानी वीकली हर एक मंडे को एक फॉलो कॉल्स हमारी तरफ से जाती है कि लास्ट वीक हमारी एकेडमिक टीम ने क्या किया, टीचर्स ने क्या किया, और हमारा नेक्स्ट वीक का टीचर प्लानर क्या है, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। 365 डेज करिकुलम प्लानिंग हमारी तरफ से जाता है, इसीलिए वो फॉलोअप ट्रेनिंग रखी जाती है कि क्या हम उसके अकॉर्डिंग चीजों को कर पा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिसेस हमारी रेगुलर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। साथ में हम ये भी ध्यान देते हैं कि एनुअल ट्रेनिंग का सेशन, तो एनुअल ट्रेनिंग सेशंस आपके अपने कैंपस पे साथ में कंबाइंड, अगर सपोज आपकी सिटी में 5 से 6 सेंटर्स है तो हम उनको कंबाइंड इनवाइट करते हैं कंबाइंड ट्रेनिंग के लिए, जिससे कि हम प्रॉपर गेट टुगेदर भी रख पाए सारे सेंटर्स ओनर्स का, टीचर्स का और सेंटर ब्रांच कोऑर्डिनेटर्स का, जिससे कि हम शेयरिंग्स बढ़ा पाए, एक दूसरे को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए उस पर्टिकुलर सिटी में बिजनेस को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा रेगुलर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग, तो डिजाइनिंग के लिए आपको कोई भी अलग से डिजाइनर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स होते हैं वो कंपनी खुद अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करती है, चाहे वो रेगुलर डिजाइन का वर्क हो या स्पेसिफिक आपको कोई इवेंट या सेलिब्रेशन से रिलेटेड डिजाइन हो या आपके एनुअल डे फंक्शन से रिलेटेड डिजाइन हो, वो सारी चीजें कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है। साथ में जितने एडमिशंस आपके पास होते जाते हैं, फाइनली उसका स्टूडेंट किट कंपनी खुद बना के आपको देती है, जिसमें उनके बुक्स, बैग, स्टेशनरी, आईडी कार्ड, उनके यूनिफॉर्म्स, वो सारी की सारी चीजें पार्ट ऑफ किट बच्चों के होते हैं। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द सपोर्ट एंड सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद जो हम इनिशिएट करेंगे वो हम करेंगे फाइनेंशियल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। सो बेसिकली फ्रेंचाइज जो आपके सामने अभी विजिबल होगा वहां पे लिखा हुआ है फ्रेंचाइज रिक्वायरमेंट्स। सो फ्रेंचाइज रिक्वायरमेंट के तौर पे पहला रिक्वायरमेंट है साइट स्पेसिफिकेशन जो आपके पास होना चाहिए। तो साइट हम लोग प्रीफर करते हैं ग्राउंड फ्लोर। अगर आपके पास ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल नहीं है तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तक की प्रीमाइसेस के लिए आप जा सकते हैं। मिनिमम स्पेस जो हम लोग रिक्वायरमेंट बोलते हैं हमारी तरफ से 1500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, यानी मिनिमम 1500 स्क्वायर फीट होना ही चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर सेटअप कर सकते हैं। मैक्सिमम के लिए नो लिमिट है, तो आप 2000, 2500, 3000, 3000 से ऊपर अगर आपके पास उतना स्पेस मिलता है तो दैट इज सफिशिएंट। पहली प्रेफरेंस है ग्राउंड फ्लोर। अगर ग्राउंड फ्लोर नहीं मिलता है, एक कॉम्बो मिलता है ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का, तो मैक्सिमम सजेशन है कि आप फर्स्ट फ्लोर तक ही जाएं। आप उससे ऊपर यानी हाई राइज बिल्डिंग्स में बहुत ऊपर जाने की चीजें नहीं करें, वो आपको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा और हम लोग भी शायद उसके लिए आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो ग्राउंड या ग्राउंड प्लस फर्स्ट मैक्सिमम। सेकेंड वन इज द स्टाफ सिलेक्शन। स्टाफ सिलेक्शन के लिए जैसे मैंने आपको रेशियोज बताए थे, टीचर्स, काउंसलर्स यानी ब्रांच कोऑर्डिनेटर, मेड्स एंड सिक्योरिटी गार्ड, ये 4 डिफरेंट वर्टिकल में हमें स्टाफ रिक्वायर्ड होंगे। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है हमारे इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए बेसिकली, तो जिस मॉडल को बोलते हैं फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल, यानी ओनरशिप आपके पास रहेगी, आप ही उसे ऑपरेट करेंगे। इस पर्टिकुलर मॉडल में जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम लोगों ने 2 तरीके के डिफरेंट पैकेजेस दिए हुए हैं। पहला हमारा पैकेज प्लान है जो अर्बन मार्केट के लिए है इंडिया के, वो 6,99,000 रुपीज में है INR, इंडियन नेशनल रुपीज में। एंड सेकेंड वन इज द सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट, यानी जो छोटी लोकेशंस हैं, तहसील हैं, टीयर 3 और 4 कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं, तालुकाज हैं, वहां पे 3.99 का एक पैकेज इसमें दिया गया है।
थर्ड जो है वो बेसिकली कोविड को कंसर्न करके रखा हुआ है ब्रांड कन्वर्जन के लिए, जिन लोगों को अपने ब्रांड को कन्वर्ट करना है और ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे, लॉस में है या उनको करिकुलम रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वो सारी चीजें हम वहां पे सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 2 प्लान को। सो फर्स्ट 2 प्लान में बेसिकली अर्बन मार्केट में हमने प्लान को थोड़ा सा वाइड रखा हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें एड ऑन करी गई हैं, जैसे कि जिम्नेजियम है, सॉफ्ट जिम है, लाइब्रेरी है, जो मेट्रोज के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट हमें समझ में आई, और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ का जो कंपटीशन है, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है और वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनकी वो डिमांड है। उस चीज को एनालिसिस करने के बाद हमने उस पैकेज को डिजाइन किया है। पूरे पैकेज में क्या क्या चीजें हम शामिल कर रहे हैं, हम शामिल कर रहे हैं आपकी फ्रेंचाइजी फीस। पहले तो फ्रेंचाइजी फीस आपको एडिशनली नहीं देना है। दूसरा, हम पूरा सेटअप मटेरियल वो शामिल कर रहे हैं जो मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया। सेटअप मटेरियल को दिल्ली से आपके सेंटर तक पहुंचाने में, आप पैन इंडिया कहीं पे भी हैं, आपके सेंटर तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट लगेगा वो हमने मैनेज किया। प्लस इन सारे मटेरियल या फ्रेंचाइजी फीस पे जितना भी जीएसटी अप्लाइड है, कहीं 18% है, कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 5%, या बुक्स हैं तो उस पर 0। सो इस तरीके से पूरे वो जीएसटी का एक्यूमुलेशन भी उसमें है। तो बेसिकली 6.99 लाख एंड 3.99 लाख अगर आप कोई भी पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको एडिशनल कोई भी अमाउंट कंपनी को नहीं देना है। दोनों ही केस में बुकिंग अमाउंट जो है, जो आपकी लोकेशन आप ब्लॉक कर सकते हैं, चाहे आपके पास साइट है या नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो पहली प्रायोरिटी है लोकेशन को ब्लॉक करना। सो दैट लोकेशन ब्लॉकिंग चार्जेस इज 10,000 रुपीज ओनली। लोकेशन ब्लॉक करने के बाद हम आपको 1 ईयर का मैक्सिमम टाइम देते हैं, जिस 1 ईयर में आप अपने सेटअप को इनिशिएट कर सकते हैं। चाहे वो अभी आप इस अप्रैल से सेटअप कर लीजिए, या इमीडिएट इनिशिएट कर लीजिए, जुलाई में कर लीजिए, अक्टूबर में कर लीजिए, या नेक्स्ट जैन फेब में कर लीजिए। सो आपको एटलीस्ट 1 साल का टाइम हमारी तरफ से अलॉट होता है, कि जो आप प्रॉपर टाइम पे अपनी साइट सर्च करके, या जिनके पास लैंड है वो अपनी साइट का कंस्ट्रक्शन करके इसको इनिशिएट कर सकते हैं। सेकेंड पेमेंट हम आपसे कॉल करते हैं ऑन द डे ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। सो पहला डॉक्यूमेंट होगा जब आप बुकिंग करेंगे, दैट विल बी LOI, लेटर ऑफ इंटेंट। सेकंड डॉक्यूमेंट होगा फाइनल एग्रीमेंट पेपर, जब आप सेकंड पेमेंट करते हैं। सेकंड पेमेंट उसका 50% है दोनों ही केसेस में, 3,49,500, और उस वाले पैकेज में 1,99,500। थर्ड पेमेंट हम आपसे कॉल करते हैं मटेरियल डिस्पैच होने से 15 से 20 दिन पहले, जब हमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट में लगाना होता है। उस टाइम पे 3,39,500 पहले केस में, और दूसरे केस में 1,89,500। तो इस तरीके से इनका पूरा बाइफर्केशन दिया गया है। कोविड के टाइम पे अभी बहुत सारी इंक्वायरीज हमारे पास ऐसी आ रही है कि जो लोग ये चाहते हैं कि हम फ्रेंचाइजी को बुक तो कर लें, लेकिन वो इनिशिएट करना चाहते हैं जुलाई में या जून में या अप्रैल में, उनके स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। सो वो सारी चीजें भी सहूलियत अवेलेबल है। अभी कोविड में हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टर मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए इंटरेस्टेड हैं और स्टेट लेवल की मास्टर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या रीजनल मास्टर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो हमारे साथ तुरंत जुड़ सकते हैं और फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन में हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और अपने स्टेट या रीजनल एरिया में फ्रेंचाइजी कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन यूनिट फ्रेंचाइजी से रिलेटेड है। फिर हम डिस्कस करेंगे मास्टर फ्रेंचाइजी से रिलेटेड। सो आई थिंक ये फाइनेंशियल चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, व्हाट यू गेट में दिया हुआ है ये चीजें। इसमें आपको फ्रेंचाइजी लाइसेंस फॉर लाइफ टाइम, यानी हम आपको लाइफ टाइम फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहे हैं। आपसे 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर पे कोई भी रिन्यूअल चार्जेस नहीं लिया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट हर एक 3 साल पे रिन्यू होता रहेगा। आफ्टर गोइंग फॉर द सम रिव्यू एंड ऑल, जैसे हम जब रिव्यू करेंगे तो बेसिकली हमारा होगा कि हमारे कैंपस का ऑडिट, तो एनुअल ऑडिट होती जाएगी और हर एक 3 साल में हम उसका रिन्यूअल करेंगे। मोस्टली कंपनियां आपसे रिन्यूअल चार्जेस लेती हैं, हमारे केस में कोई भी रिन्यूअल चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है, जहां पे ये रिलैक्सेशन है यूनिट फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को। दूसरा, मोंटेसी लैब इक्विपमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 90 के करीब इक्विपमेंट हैं, जो टोटल 100% वुडन इक्विपमेंट है और चाइल्ड फ्रेंडली इक्विपमेंट है, जो कि डॉक्टर मारिया मोंटेसी, जिसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर मारिया मोंटेसी के मोंटेसी मेथडोलॉजी से इंस्पायर हैं। तो आप पहले ये भी अपनी चेकलिस्ट में डालें कि आप कोई भी प्री स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो हार्डकोर मोंटेसी फिलॉसफी पे काम कर रहा है, उसके आउटकम्स क्या हैं, वो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा किड्स फर्नीचर, यानी बच्चों का फर्नीचर उसमें शामिल है। प्ले एरिना, इंडोर एंड आउटडोर प्ले इक्विपमेंट उसमें शामिल है। स्टोरी टेलिंग है, जिम्नेजियम है, क्रिएटिव एरिना है, प्ले एंड रिक्रिएशन है, डिजिटल लर्निंग मटेरियल्स हैं, लाइब्रेरी है, प्रमोशनल एंड मार्केटिंग के प्रिंटेड मटेरियल हैं, ऑफिस के सारे मटेरियल हैं, चाहे वो कोई भी ऑफिस का प्रेजेंटेशन किट हो या स्टाफ का यूनिफॉर्म हो, मेट्स के यूनिफॉर्म हो, ID कार्ड सभी स्टाफ के हो, वो सारी चीजें इसमें शामिल हैं। एडमिशन को इंक्वायरी को मैनेज करने के लिए इंक्वायरी फॉर्म, पैड, ब्रोशर, वो सारी चीजें शामिल हैं। 20 बच्चों का एडमिशन किट ऑलरेडी इसमें शामिल है। एडमिशन किट का मतलब है कि उनका प्रोस्पेक्टस, उनका एडमिशन फॉर्म और मेडिकल कंसेंट फॉर्म, तो 20 बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन किट इस पैकेज में शामिल है।
कैंपस को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी चीजें हम लोग डेवलप करते हैं। तो बहुत सारे डेकोरेशन में हमारे ब्रांड मैस्कट का कटआउट है, या क्लासरूम्स के स्टिकर्स हैं, बोर्ड्स हैं, इस तरीके के बहुत सारी चीजें कैंपस डेकोरेशन का पार्ट है जो कि डेकोरेशन में है। और क्लासरूम के बेसिक इसेंशियल्स हैं, जैसे कि बोर्ड हो गया या अदर सारी चीजें हो गई। इसके अलावा फिर आते हैं सेकंड पार्ट, फोर्थ वन इज जो कि रेगुलर बेसिस पे हमारी यानी एज अ फ्रेंचाइज पार्टनर आपकी और कंपनी की शेयरिंग्स होती हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हम नो रॉयल्टी मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो उसके बाद हम किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं, कैसे हम आपको कमिट कर रहे हैं। आप ये भी चेक करिएगा कि बहुत सारी कंपनियां जो नो रॉयल्टी मॉडल पे काम कर रही हैं, क्या आपको वो डोर स्टेप सर्विसेज दे रही हैं? 90% केसेस में आपको पता चलेगा कि नहीं देती हैं। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि क्या आप कमिटमेंट तो कर रहे हो, लेकिन अगर आप रॉयल्टी भी नहीं ले रहे हो, आप किट कॉस्ट में भी आपको कोई बहुत ज्यादा इनफ्लो नहीं है, तो क्या आप हमें ट्रेवल करोगे? क्योंकि एक बार आप बुलाते हो तो ट्रेवल कॉस्ट भी आपका 15 से 20 हजार रुपए हो जाता है। तो बहुत सारे कमिटमेंट लोग कर तो देते हैं, बट वो फुलफिल नहीं होता है। तो एज ए इन्वेस्टर यू नीड टू चेक दैट पार्ट कि क्या वो कंपनियां वो चीज फुलफिल करने के लिए रेडी हैं, और वो और एज पर कमिटमेंट वो आपको विजिट करने वाली हैं, ऑन साइट ट्रेनिंग देने वाली हैं, ऑन साइट करिकुलम देने वाली हैं, या उनकी किट में क्या क्या मटेरियल शामिल है, राइट। सो हमने अपनी किट में कैसे इसको मैनेज किया और क्या हमारी प्रैक्टिसेस हैं उसमें, चूंकि हम रॉयल्टी नहीं ले रहे हैं, यानी रॉयल्टी नहीं लेने का मतलब है कि जो फीस का टोटल कलेक्शन है, मंथली बिलिंग जितनी की भी होगी, वो टोटल अमाउंट आपको जाता है। उस पर हमारा कोई भी 15%, 20%, 25% का कोई भी कट नहीं है, जिसको प्रोफेशनली रॉयल्टी बोला जाता है। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रॉयल्टी के ऊपर भी जीएसटी लगाया हुआ है। तो जो कंपनियां रॉयल्टी पे प्रैक्टिस कर रही है उसके ऊपर 18% जीएसटी का एक्स्ट्रा बर्डन आता है फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के ऊपर। तो वो भी आपको अपने चेकलिस्ट में रखना है कि जो रॉयल्टी ले रही है तो क्या जीएसटी कंपनियां पे करेंगी या जीएसटी आप पे करेंगे, तो वो भी आपको क्रॉस चेक करने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमने अपने किट को 4 पार्ट में बाइफरकेट किया हुआ है। टियर 1 सिटीज, जिसमें हम लोगों ने बिग मेट्रोस, स्टेट कैपिटल, सारे राज्यों की राजधानियां, स्टेट कैपिटल्स, और दिल्ली एनसीआर को रखा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के 5 मेजर सिटीज, यानी गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा एंड फरीदाबाद। तो इनके 5 मेजर सिटीज दिल्ली एनसीआर को रखा हुआ है। टियर 2 सिटीज यानी बेसिकली उसके जो बिलो लेवल की सिटीज हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रखा हुआ है। टियर 3 एंड टियर 4 जिसमें सारी कैटेगरीज, तालुका एंड टाउन्स एंड सारे लोगों को शामिल किया है हमारे किट में। यानी स्टूडेंट किट चार्जेस प्लस उसका जीएसटी, सपोर्ट चार्जेस प्लस उसका जीएसटी, टोटल अमाउंट ये आपको दिया हुआ है हमने 5000, 6000, 7000, 8000। अप साइड से करते हैं तो मेट्रोज में 8, बिलो टियर 2 लेवल सिटीज में 7, देन 6 एंड देन 5। यानी बेसिकली हमने अपने पूरे किट को, सपोर्ट चार्जेस को, सबको क्यूमुलेट करने के बाद, यानी उसके जीएसटी का जो कैलकुलेशन होगा उसको क्यूमुलेट करने के बाद, हमने एक लमसम चार्जेस आपसे कॉल किए हैं पर स्टूडेंट पर ईयर, जिसमें हम सारी की सारी चीजें शामिल कर रहे हैं। ये डिपेंड आपके सिटी में या आपके लोकेशन पे कौन सा चार्ज अप्लाई होगा। जब हम आपसे पर्सन टू पर्सन डिस्कशन करेंगे, 1 to 1 डिस्कशन करेंगे, हमें आइडिया लगेगा कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया में कितना फी स्ट्रक्चर आ सकता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये श्योर नहीं है, ये चीज आप मत मान के चलिएगा कि नहीं आपकी सिटी टियर 2 में आती है तो 7000 ही लगेगा, नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप, हो सकता है कि आप पानीपत के हो, लेकिन आप पानीपत में किसी आप टाउन के हो, पानीपत की एग्जैक्ट सिटी को नहीं हो। पानीपत को हो सकता है हम टियर 3 सिटी में कैटेगराइज करते हो, लेकिन पानीपत का किसी टाउन, कोई टाउन है तो हो सकता है हम उसको टियर 4 में कैटेगराइज करें। तो डिपेंड करेगा कि हम किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, उसके लिए हम ओपन है आपके साथ डिस्कशन करने के लिए। इन अमाउंट्स को देने के बाद आपको मिलेगा क्या और कैसे आप इसको सेल करेंगे पेरेंट्स को। सो बेसिकली जो स्टूडेंट किट इंक्लूड करती है उसमें हमने कोशिश करी है कि हम बच्चे को सारे के सारे मटेरियल्स दे पाए, जिसमें उनकी बुक्स हैं, उनकी नोटबुक्स हैं, एज पर क्लास बुक्स एज पर क्लास हैं। इसलिए कोई भी हमारी जो किट है वो ऐसा नहीं है कि प्ले ग्रुप का अलग प्राइस है, नर्सरी का अलग। हमने आपसे एक ही अमाउंट लिया है जिसमें सारे सेक्शंस के सेम रेट्स हमने रखे हुए हैं। तो बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज हो जाती है, बट हमने अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के ऊपर वहां पे बर्डन नहीं डाला है। सो वहां पे बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, बैग है, डायरी है, उसमें शामिल किया गया। हालांकि मोबाइल ऐप भी साथ में है, इसलिए अभी डायरी का बहुत उतना यूज नहीं है। बच्चे के लिए एप्रेन है, उनका कॉटन हैंकी है, टेबल मैट है, उनका बर्थडे कार्ड है, उनका आईडी कार्ड विद कवर एंड लैनियार्ड है, डिस्पर्सल कार्ड है पेरेंट्स के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए। स्टूडेंट पर्सनल फाइल फोल्डर है जिसके अंदर उसके सारी वर्कशीट्स पूरे साल की रखी जाती हैं। उसका रिपोर्ट कार्ड है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट शीट है, उसका बोनाफाइड यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। हेल्थ चेकअप फॉर्म 3 हमने डाले हैं। बेसिकली पर्पस है पेरेंट्स के बीच में बच्चों के डेंटल यानी ओरल एंड ओरल एंड ऑन द सेम टाइम एक बॉडी चेकअप, रेगुलर बॉडी चेकअप को एनहेंस करना। तो हेल्थ चेकअप फॉर्म हम डॉक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं और क्वार्टरली एक हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं कैंप स्कूल पे। स्टेशनरी पाउच है जिसके अंदर पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड क्रेयॉन्स रखा गया है। स्टूडेंट किट पैकिंग बैग है जिसके अंदर प्रॉपर्ली वो पैक्ड आपको विद ब्रांडिंग जाता है, जिससे आप सीधे आप पेरेंट्स को उसको ट्रांसफर कर देते हैं।
2 सेट यूनिफॉर्म्स के इसमें डाले गए हैं, जिसमें समर यूनिफॉर्म में टी शर्ट, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स या स्कर्ट्स एंड सॉक्स डाले गए हैं, प्लस पैकिंग बैग है उसका। इसके अलावा स्पोर्ट यूनिफॉर्म में टी शर्ट हो गया व्हाइट कलर, लोअर हो गया यानी फुल साइज गर्ल्स एंड बॉयज के लिए कॉमन लोअर है स्पोर्ट के लिए, सॉक्स एंड यूनिफॉर्म पैकिंग बैग, साथ में मोबाइल ऐप, लर्निंग ऐप एंड करिकुलम बच्चे का। सो ये सारी की सारी चीजें थ्रू आउट द ईयर की उसके पार्ट ऑफ पैकेज है। अब आप नर्सरी का भी है, एलकेजी का भी है, यूकेजी के बाद हमारी तरफ से प्राइसेस सेम है, आप उसको बाइफरकेट करके सामने पेरेंट्स को सेल कर सकते हैं। किस जगह पे क्या सेल्स स्ट्रेटेजीज होंगी उसको बताना हमारा पार्ट है, कि क्या आप सारे मटेरियल्स को बाइफरकेट करके पेरेंट्स को देंगे या आप उसको सारा कुछ लमसम देंगे। ये डिपेंड करेगा कि हम उस एरिया को एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके की स्ट्रेटेजीज हमें वहां पे अपनानी चाहिए। राइट, तो ये बेसिकली सारी चीजें हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस का पार्ट है, जैसे मैंने जितना पैकेज ऊपर आपसे डिस्कस किया है उसमें ऑफिस का फर्नीचर, वाटर प्यूरिफायर, सीसीटीवी, एलईडी टीवी या प्रोजेक्टर, फायर एक्सटिंग्विशर्स, और आपका बिल्डिंग का जो भी रेंट होगा, वुडन वर्क या इंटीरियर अगर कुछ भी वहां पे होता है तो, यानी पेंटिंग स्पेशली, ट्री हाउस या प्ले स्टेशन आप अपने गार्डन के अकॉर्डिंग अगर एडिशनल लगवाते हैं तो वो, फ्लोरिंग और पेंटिंग एक्सपेंसेस। ये 5 से 6 चीजें उस पैकेज का पार्ट नहीं है, लेकिन उससे ऊपर मैंने जितनी चीजें सेटअप से रिलेटेड डिस्कस करी थी जो कि बच्चों से रिलेटेड आइटम है, वो सारे के सारे उस पार्ट ऑफ पैकेज हैं। ये जो पैकेज मैंने आपको प्रेजेंट किया हो ये इस साल पूरे टाइम के लिए एप्लीकेबल है, 31 जनवरी 2020 तक 6:30 बजे तक ये एप्लीकेबल है। तो इट मींस अगर आप इसको आज भी बुक करते हैं और आपको इसको बनाने में लेट हो गया, 3 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का, तो भी हम आपको 31 जैन तक का टाइम देते हैं कि आपका जो 2022 का भी स्लॉट आप सेलेक्ट करते हैं तो आप इसको इजिली इनिशिएट कर सकते हैं, आप अपनी लोकेशंस को ब्लॉक कर सकते हैं। सो इसके बाद एक नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं 2 मिनट में आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, वो है रोड मैप, कैसे हम इसको इनिशिएट करेंगे, जैसे मैं आपको बताया था। तो सबसे पहले अगर आपको प्रेजेंटेशन सही आया होगा, कुछ क्वेरीज होंगी जो आगे हम नेक्स्ट 10 मिनट में सॉल्व करेंगे। सो मेजरली होगा कि आप हमसे एप्लीकेशन फॉर्म्स कॉल करेंगे जिससे आप अपनी लोकेशंस को ब्लॉक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, और 10,000 रुपीज के एक डीडी चेक या एनईएफटी के थ्रू। डीडी चेक और एनईएफटी जो 10,000 रुपीज का होगा वो फ्रेंचाइजी फीस, यानी टोटल जो अमाउंट हम आपसे कॉल कर रहे हैं 3,99,000 या 6,99,000 रुपीज, जो भी पैकेज आप सेलेक्ट करेंगे उसमें ये एडजस्टेबल है, तो ये कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है जो आपसे कॉल किया जाएगा। आप हमें साइट की फोटोग्राफ्स या वीडियो शेयर करेंगे या हम साइट सर्चिंग कंबाइनली सर्च करेंगे साइट को। साइट अप्रूवल होगा, साइनिंग ऑफ एमओयू एंड एग्रीमेंट का डेट रखा जाएगा जिस दिन हम आपसे वो हाफ पेमेंट लेंगे और एमओयू साइन करेंगे। इनिशिएट्स स्कूल सेटअप, इंटीरियर एंड कंस्ट्रक्शन वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट। जिनके पास लैंड है उनका हम कंस्ट्रक्शन इनिशिएट कराएंगे, जिनके पास ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है उनका हम इंटीरियर वर्क इनिशिएट कराएंगे। उसके बाद फिर स्कूल के सेटअप यानी इंस्टॉलेशन ऑफ मटेरियल्स, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, देन प्रिपरेशन ऑफ इवेंट ऑफ लॉन्चिंग, किस लेवल का हमें इवेंट करना है, क्या हमें उस दिन बेबी शो रखना है या किड्स कार्निवल रखना है या एक फॉर्मल गैदरिंग रखनी है, किसी भी सोशल जो जिनका सोशल वहां पे इंप्रेशन ज्यादा है, सोशल व्यक्ति हैं उनको बुलाना है, पॉलिटिशियंस को बुलाना है, एडुकेशनिस्ट को बुलाना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एक जॉट डाउन प्लानिंग करके फिर हम इनॉग्रेशन का डेट रखते हैं और लॉन्चिंग के बाद फिर वो सेंटर हमारा डे टू डे सपोर्ट के लिए चला जाता है लाइफ लॉन्ग के लिए। सो दिस इज द पार्ट कि जो आपको टेक केयर करने की रिक्वायरमेंट बेसिकली है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द इंडिया। नेपाल के भी कुछ पार्टिसिपेंट नो डाउट आज यहाँ पे हैं। मैं आपको यहाँ पे कॉमर्शियल प्रेजेंटेशन नेपाल के लिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज वो काफी कुछ मिक्स हो जाएगा और हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है। तो अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड पे आएंगे और नेपाल का जो कॉमर्शियल प्रेजेंटेशन यानी बेसिकली नेपाल में क्या इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे क्या फ्रेंचाइजी फीस है, क्या हम वहाँ पे रॉयल्टी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या वहाँ पे किट कॉस्ट क्या है, क्योंकि वहाँ पे कस्टम ड्यूटी भी लगती है हमें किट को भेजने के लिए और नेपाली अमाउंट, नेपाली इंडियन रुपीज का नेपाली रुपीज में कन्वर्जन भी होता है। तो वो सारी जो बारीकियां हैं वो मैं शायद आपको इन पर्सन दे पाऊं यानी मेल्स के थ्रू या एक इन पर्सन मीटिंग के थ्रू। तो बेसिकली अब हम क्वेश्चन एंड आंसर